just looking of so I know others are more like cash flows and it's a high turnover business they are running. They will be expected to do this work doing a number of over 100 crores. And I think in this all of us are dealers working at a number of 100 crores per year, which is huge. So the margins are test, but it's a huge business and burning chunk to transact. So if all the board becomes very important for us to be very specific and be very have very good control over the financial management. So this can be a cash cow or it could be cash pay. This is how we plan and manage our cash. Good afternoon. Good evening. Thank you very much. So that's the energy. और भारत पेट्रोलियम की जो टैगलाइन है, what is that? Energizing lives. Are we really conscious of what does this tagline means? Are we? What do you understand by this tagline? Namu? Oh, what? I just want to know your, energy levels with respect to your energy as well as the energy which we are spreading in our system. Thoda sa. Carry on. Udit, what do you understand by the energizing lives? Is it all about selling energy products related to the energy, or something beyond? So basically, energy BPCL is a primarily energy company. Very right. So now we started as just petroleum product. So now we are diversifying gas, solar, and so many other things. So basically, idea is to create a value Right. through energy in everybody's life. Fantastic. So when we are touching everybody's life, are we touching it physically or with something which is not seen, not Intangible. tangible? Fantastic. So when we talk of the energy, this energy is all about something which can never be destroyed. Which can never be destroyed. It can only change its form, just like the matter. Just like the matter. Physics जो बात करती है वो इसकी बात करती है कि जैसे एनर्जी और मैटर कभी खत्म नहीं होते हैं, वो हमेशा रहते हैं, ऑलवेज. वो खाली फॉर्म्स चेंज करते हैं, राइट? अब हम लोग अगर मैटर की बात करते हैं और एनर्जी की बात करते हैं और बीपीसीएल का अगर ये स्लोगन है एनर्जाइजिंग लाइव्स, तो इसको हम लोगों ने प्रैक्टिकल शेप देके इसके रिजल्ट्स देखे हैं. टू ट्रांसफॉर्म समथिंग विच वाज अ मैटर, विच वाज समथिंग अबव मैटर, and then getting it translated to the business outcomes. मतलब इसका यह है कि हम लोग एनर्जी को समझें. एनर्जी को समझने की जरूरत है beyond what we do. फिजिकल लेवल से ऊपर उठकर हम लोग उस स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंचे, तब जाके हमको एनर्जी की समझ आएगी. एंड व्हेन आई से स्पिरिचुअल, आई डोंट मीन रिलीजियस. Many of us confuse this word spiritual with religious, with being religious. Can anybody tell me what is the difference between being religious and being spiritual? Anyone of you? Anyone of you? Religion can be of any religion, but when we are talking of spiritual, that spirit everybody has got, maybe whatever religion. The spirit of person, it's in everybody, in Muslims, Hindu, everyone, every religion person has a spirit. So we are talking about spiritual, and that's what spirituality all means about it. Fantastic. तो जब भी आपके अपने किसी साथी की बात लगेगी अच्छी, क्योंकि हमको यहाँ से लेकर कुछ जाना है, नहीं जाना है खाली, इसलिए जरूर बजा देना ताली. Just understand, I mean, what he is saying कि हम लोग सब spirits हैं, and the understanding of spirit is all about spirituality. Now you will say, what is the spirituality has to do with the business? बिजनेस के साथ इसका तालमेल क्या है? इसका तालमेल है कि हम लोग एज HR, आज से अगर हम लोग 40 साल 30 साल पहले की बात करें, तो we used to hire the people who used to have a better IQ. IQ का जमाना था, yes or no? Was that the time of IQ? उस समय IQ की बात होती थी और लोग कहते थे कि जहां पे IQ है तो वही हमारे सिस्टम के लिए अच्छा है, जहां पे जिसका IQ अच्छा है.
वक्त बदलता गया, चेंज होता गया, और फिर हम लोगों ने IQ से EQ की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इज दैट ट्रू? और हम लोगों ने उन लोगों को हायर करना शुरू किया जिनका EQ अच्छा था, बिकॉज नाउ द कंपनीज वांटेड पीपल हु वुड बी इमोशनली स्टेबल। ऑलराइट, दोज हु वर इमोशनली स्टेबल, ऐसे लोगों को हायर करना शुरू किया, बिकॉज वी डिडंट वांट पीपल हु वुड let go out of their emotional control when a situation comes। जैसे कि आपके मन की स्थिति परिस्थिति से ऊपर हो, हमें ऐसे लोग चाहिए थे। तो IQ overruled and EQ overtook the IQ। अब ये वक्त भी चला गया है। Can you tell me what are we as HR people or the companies now of late world over, not in India, are looking for? कोई बता सकता है? What has replaced EQ now? It is SQ। अब क्या तालमेल हुआ इसका, SQ का और बिजनेस का? यहां पे एनर्जाइजिंग लाइफ्स की बात समझने की जरूरत है। SQ का मतलब स्पिरिचुअल क्वोशेंट उस शख्स का अच्छा होना चाहिए जो हमारी टीम का हिस्सेदार बनना चाहिए। बिकॉज जो हमारी इमोशनल जर्नी है, जो हमारी लाइफ की, इसके 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस ऑफ द जर्नी ऑफ द इमोशनल बीइंग। वी आर ऑल व्हाट? ह्यूमन बीइंग्स, मैडम मोनिका? वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, राइट? व्हाट आर वी? आर वी ह्यूमंस और आर वी बीइंग? व्हाट आर वी? मैडम जॉली जस्ट नाउ टॉक्ड ऑफ who am I की बात करी थी उन्होंने, एंड रिपीटेडली उन क्वेश्चंस के ऊपर वो गई थी, एंड देन शी सेड एंड व्हेन आई वेंट होम विद द टीयर्स इन माय आईज, राइट? तो हम लोग जब पैदा होते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स होके पैदा होते हैं, लेकिन पहले हम लोग फर्स्ट 5 months इन द वॉर्म वी आर ह्यूमंस, और ये वर्ड आता है ह्यूमस से। ह्यूमस इज अ लैटिन वर्ड। व्हाट? लैटिन वर्ड। और ये लैटिन वर्ड ह्यूमस का मतलब होता है 5 elements of the earth। 5 elements of the earth is all about the humus or the human। एक मांस का टुकड़ा है, एक पंच तत्व का टुकड़ा है वॉर्म में पहले 5 महीने, एंड देन जब हम लोग 6th month में और 5.5वें महीने में जब भी हम लोग एंटर करते हैं वॉर्म में, तो हम एज बीइंग ऐड हो जाते हैं उसमें, एंड देन वी बिकम ह्यूमन बीइंग्स। Then we become human beings, and being is nothing but it is all about this energy. I was talking of the energizing lives, my dear friends, energizing lives. तो हम लोग जब इस दुनिया में आते हैं तो we come to this world as human beings। तो हमारी जो पहली कॉन्शियसनेस की सीढ़ी होती है वो होती है इमोशनल कॉन्शियसनेस। The first few years of our life are dominant by the first level of the being, which is called as the emotional being, right? क्यों? एक बच्चा इमोशंस की भाषा ही तो समझता है, सिद्धांत? Yes or no? उसको पोस्ट और पोजीशन से कोई मतलब नहीं है ना, उसको ये मतलब नहीं है कि कोई अमीर है कोई गरीब है। वो क्या समझ रहा है? प्यार की भाषा, दुलार की भाषा, स्नेह की भाषा। दिस इज व्हाट ही और शी इज अंडरस्टैंडिंग। और ये हमारी जो बीइंग की स्टेज है, ये हमारी कब तक चलती है? जब तक सेकंड स्टेट ऑफ माइंड और द सेकंड लेवल ऑफ द बीइंग हावी नहीं हो जाती है हमारे ऊपर, या हमारी लाइफ को टच नहीं करती है। व्हाट इज दैट बीइंग? जब हम लोग टीन एज में आते हैं तो हमारी सेकंड स्टेट ऑफ द इमोशनल बीइंग हमारे ऊपर असर करना शुरू कर देती है, एंड दिस इज फिजिकल बीइंग। मानते हैं इस बात को? यू एग्री? नाउ विच दिस कॉन्शियसनेस which was actually under the influence of the emotions now start changing its state towards the physical or the material being। मानते हो?
अब टीन एज में आके हम लोग खुद को एक शरीर समझना शुरू कर देते हैं और इस शरीर को खूबसूरत बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम लोग जिम्नेजियम जाना शुरू कर देते हैं और दिस मटेरियल और द बॉडी और द ह्यूमंस स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द सिमिलर फॉर्म ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। हम लोग ऑपोजिट सेक्स की तरफ हम लोग इतने ज्यादा झुकने लगते हैं, हमको ये ख्याल ही नहीं रहता है कि किसी खूबसूरत शरीर के पीछे की एनर्जी क्या है। वी आर टॉकिंग ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। दिखने में शरीर अच्छा नहीं है, लेकिन उसके पीछे की जो बीइंग है या एनर्जी है बहुत ही खूबसूरत है। बट सिंस वी आर इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ द फिजिकल बीइंग, हम अंधे होते चले जाते हैं। फिजिकल कॉन्शियसनेस के चक्कर में हम लोग जो सही चीज है उसको देखने में कहीं ना कहीं महरूम रह जाते हैं और हम हर उस चीज को खूबसूरत समझना शुरू कर देते हैं जो मटेरियल्स के लेवल पे है। और ये हमारी जो बीइंग है ये हमारी एक्टिव रहती है तब तक जब तक थर्ड लेवल ऑफ द बीइंग एक्टिव नहीं होती हमारी। एंड द थर्ड लेवल कम्स व्हेन वी अटेन the age of about 25 years or so, when we enter into the third state of our being, which is our professional being, right? So that is professional being और हमारी social being। हमारी शादी होती है, हमारा घर परिवार बनता है और हमारी थर्ड स्टेट ऑफ बीइंग एक्टिव हो जाती है। Now we want to be recognized in the society and we want to get associated with all those people who have attained a certain level in the society, right? हम लोग उसकी तरफ झुकना शुरू हो जाते हैं जो किसी लेवल पे लोग पहुंचे हुए हैं। हर उस कामयाब आदमी की तरफ हमारा रुझान हो जाता है जिसने सोसाइटी में किसी किस्म की रिकॉग्निशन पाई है। यस और नो? मानते हैं इस बात को? यहां तक ठीक है? तो ये हमारी जो थर्ड बीइंग है यहाँ पर सोशल बीइंग, ये एक्टिव हो जाती है और ये सोशल बीइंग हमारी लाइफ में नॉर्मली, व्हाट आई एम टॉकिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी एंड एवरी टाइम इट इज नॉट एप्लीकेबल, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट द रिसर्चर्स एंड द स्टडीज दे हैव शोन दैट दिस बीइंग कंटिन्यूज टिल द एज ऑफ अबाउट 40 और 45। जब हमारी लाइफ की ये स्टेट भी खत्म होती है, अब हमारी लाइफ में फोर्थ एंड फाइनल बीइंग आती है। Who will tell me what is that being? कौन बताएगा? स्पिरिचुअल बीइंग, राइट? अभी तक हम लोगों की लाइफ में तीन बीइंग एक्टिव थी। ये उस कुर्सी की तरह है या उस टेबल की तरह है जो तीन लातों पर खड़ा है, और ये टेबल नहीं है स्टेबल। The table of the life is unstable still. Why? जो हमारी स्ट्रेस का कारण बन जाता है वो ये है कि कोई भी परिस्थिति आती है और हमारे मन की स्थिति हलचल में आ जाती है, राइट? आती है कि नहीं आती है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स which becomes the cause of our stress। तो हमारे मन की स्थिति परिस्थिति से ऊपर रहे, जैसा कि उस सीईओ की एग्जांपल उन्होंने दी। वो जो सीईओ को जब सवाल पूछा गया वहां पे कि क्या आप इतना बड़ा ऑफिस बना रहे हैं, वो कॉस्ट एफिशिएंसी क्या है, तो दिस लेडी वाज द टेस्टामेंट एंड प्रूफ ऑफ द इमोशनल स्टेबिलिटी। यस सिद्धू साहब? बिल्कुल। अगर ये लेडी अनस्टेबल होती सीईओ उस टाइम पे, तो वो कहीं ना कहीं या तो अपना इमोशनल कंट्रोल खो देती और उस सिचुएशन के वश में आकर सारा काम खराब कर देती और रिजाइन करना पड़ जाता उसको। यस और नो? तो अब वो लेडी, क्योंकि उसकी जो स्पिरिचुअल बीइंग थी वो एक्टिव थी, शी न्यू हाउ टू टेक केयर ऑफ हर इमोशनल स्टेबिलिटी by using the spirituality। अब मुझे नहीं पता कि उसने स्पिरिचुअलिटी यूज करके किया, बट ऑफ लेट
this SQ is the term which is being used now to check upon the emotional stability and control of the individuals to lead the teams. Okay? अब ये जो SQ है, इसकी समझ ही सारा खेल है. Again, I will come on to the business की बिजनेस के साथ इसका क्या लेना देना है. बिजनेस के साथ इसलिए लेना देना है कि आप सब लोग या कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी बिजनेस का लीडर इज अ लीडर, और जो लीड करता है उसकी टीम में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बुद्धिस्ट भी है, कुछ भी है, कास्ट भी है, लोअर कास्ट भी है, अपर कास्ट भी है, सब कुछ है. तो अगर ये इंसान और ये लीडर अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है तो वो इन सबसे ऊपर उठकर डिसीजन मेकिंग करेगा और उस टीम को लीड करेगा. यस और नो? एग्री? So that is the understanding of spiritual being for the leaders. ये बहुत जरूरी है समझना, जानना और इसका अभ्यास करना. स्पिरिचुअल बीइंग का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई धार्मिक बात आपको बता रहा हूं या फिर मैं कोई आपको ऐसी बात बता रहा हूं जो आपको पता ना हो. यहां पर उस मैडम ने जब बात करी, मैडम जॉनी ने जब बात करी वह यहां पे है, तो शी टॉक्ड ऑफ वन थिंग. शी टॉक्ड ऑफ कि हमारी जिंदगी की गाड़ी जो है उसका ड्राइवर कौन है. आर वी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट्स? यही बात करी उन्होंने. तो उन्होंने ये कहा था कि मैं ड्राइवर हूं या कोई और ड्राइवर है मेरी लाइफ की इस कार का. एंड देन शी शोड अस सम सिस्टम्स जिसमें उन्होंने साइंटिफिक एविडेंस दिया कि हाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु एम आई helps us remain stress free and take control of our lives. कि मैं अपनी लाइफ की चाबी किसी और को देने की बजाय अपने पास रखूं. मैं अपने पास रखूं अपनी लाइफ की चाबी. यही तो पर्पस है हु एम आई का. हु एम आई ਤੁਹਾਡੇ साथी जगा दो. तो क्या एक बार क्या हुआ, एक स्पीकर वो कर रहे थे, बोल रहे थे, तो सिद्धू साहब के साथ कोई वो somebody was sleeping, तो उनको कहा कि सिद्धू साहब जगा देना उनको जरा, साथ वालों को. कहते सर सुलाया आपने, मैं क्यों जगाऊं. तो थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी आउट. तो अब यहां तक जो बात है स्पिरिचुअलिटी की, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पिरिट और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु एम आई इज द रियल एसेंस ऑफ अवर बीइंग हियर इन दिस लाइफ. इन दिस लाइफ मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है मुझे इस लाइफ में करना क्या है. क्या मुझे खाली पैसा कमाना है? क्या मुझे ऐशो आराम की जिंदगी बितानी है, या फिर अपनी उस रियल वेल्थ को एक्यूमुलेट करना है जो हमारी है और हमको पता ही नहीं है. और हमारी जो एक्चुअल वेल्थ है वो ये गाड़ियां नहीं है, वो बंगला भी नहीं है, वो हमारा मेटीरियलिस्टिक कैपिटल भी नहीं है, वो हमारा बैंक बैलेंस भी नहीं है. माय डियर फ्रेंड्स, इफ वी आर थिंकिंग दिस इज अवर वेल्थ, इट इज नॉट अवर वेल्थ. ये कल किसी और की थी, आज आपकी है, कल किसी और की होगी, और फिर पता नहीं किसकी होगी. नहीं, इल्यूजन है ना. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इन सब चीजों को इल्यूजन समझ के छोड़ दें चीजों को. अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग बैलेंसेस, राइट. अब हम जब समझते हैं कि हु एम आई, सो आई एम दिस स्पिरिट और दिस एनर्जी हु इज द ड्राइवर ऑफ दिस कार. एंड वेयर इज द सीट ऑफ दिस ड्राइवर, माय डियर फ्रेंड्स? It is here.
it is here the axis which is called as the hypothalamus, और इसके पीछे pituitary gland होता है, if you understand the medical language. तो इन दोनों के बीच का जो एक्सिस होता है उसमें यहाँ पे 4 इंच पीछे और 2.5 इंच नीचे अगर आप प्लॉटिंग करते हो तो here we live in this body as energy. इसीलिए प्रतीक है कि यहाँ पर टीका लगाया जाता है, यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है, और इन सब चीजों के प्रतीकों को हम लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होना, फ्रॉम फिजिकल कॉन्शियसनेस टू द सोल कॉन्शियसनेस, राइट? अब सोल कॉन्शियसनेस होके मैं अपना बिजनेस कैसे करूंगा? हम तो कहते हैं कि एनर्जाइजिंग लाइफ्स. सो हाउ डू आई डू माय बिजनेस? यू नो, बीइंग सोल कॉन्शियस. क्या एक लीडर जो है वो लीड कर सकता है अपनी टीम को अगर वो इस कॉन्शियसनेस में हो कि मेरी टीम में कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई नीचे कास्ट है, कोई अपर कास्ट है, वगैरह वगैरह. तो अगर इन सब चीजों से ऊपर उठना है किसी भी लीडर को, तो वन हैज टू शिफ्ट ऑन द कॉन्शियसनेस फ्रॉम द फिजिकल और द सोशल टू द सोल कॉन्शियसनेस. सो दिस इज हाउ वी कैन एनर्जाइज आवरसेल्व्स एंड देन ओनली वी कैन एनर्जाइज लाइव्स. अब हम यहां पर जब बात कर रहे थे मैडम जॉली के साथ, तो मैडम जॉली मोटिवेशन की बात कर रही थी यहां पे जब, तो मैडम जॉली ये कह रही थी कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है टीम को लीड करने के लिए. बट मैंने उनको कहा कि क्या वो आदमी मोटिवेशन दे सकता है किसी को जो खुद मोटिवेटेड नहीं है? क्या वो आदमी अपनी टीम को खुशी प्रदान कर सकता है जिसके पास खुद की खुशी नहीं है? वी आर टॉकिंग ऑफ द स्ट्रेस. कैन अ पर्सन pass on the stress-free environment to the team who himself remains in stress? So who has to learn remaining stress-free and then leading the teams with a clear vision? Not the people who are part of your team, but you as the leaders. But you as the leaders, you will have to find the ways and means of, discharging your duties with the clear vision of understanding the things and making or striking the balance between the materialism and the spiritualism. Only then you or we can have a progressive team. और जहां तक मैंने अभी आपको मोटी मोटी ये 4-5 बातें बताई हैं, उन बातों का क्रक्स सिर्फ इतना था कि हम लोग कॉन्शियस हों. Because we in BPCL use this terminology कि we are the people above oil. कौन लोग जानते हैं इस बात को? हम लोग आज से बहुत साल पहले इसको बहुत जोर शोर से हम लोग कहते थे. आप जानते होंगे कौशिक साहब. So there was a time when we used to call about we are the people who are above oil. We are not into the business of the oil, but we are into the business of energy. We are an energy sector company and our slogan is to energize lives. So our slogan is energizing lives. Semi-annually, that can prepare creating water machines and differential. Also, we can create This artwork is of BPCL, और BPCL की हमारी जो headquarter की टीम है, they recognized it. How these practices which I am talking of, they convert into the figures, numbers and the performance. So our company talked about this and published it on the social media on 17th December 2023, whereby our company also recognized that all these teams who were practicing physical wellness, emotional wellness, social wellness, spiritual wellness and occupational wellness were the performing teams. All right? So ये जो wellness की पूरी definition है, it actually tantamounts to
It amounts to the performance. Because एक टाइम था जहां पे हम लोग ये कहते थे healthy body has the healthy mind. Is it a true statement or the wrong statement? Wrong. Why? Fantastic. Why? Because एक स्लोगन है happy he is a happy go lucky guy. कहते हैं ना? तो हैप्पीनेस और लक दो चीजें हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग हैप्पी हैं तो लक विल फॉलो. सो द हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द गुड लक. All those people who try remaining happy in their lives, the luck follows. इसलिए ये statement है. And you as the leaders are supposed to be understanding all these things. And since the time is short, I'll just finish up this entire thing, because all of you are the cream of the northern region with respect to the volumes and the numbers of the business. Hence you are आप भी हमारे pearls हैं, नूर हैं और कोहिनूर हैं. तो कहते हैं कागज पे तस्वीर कहां बनती है? कागज पे तस्वीर कहां बनती है? ख्वाबों में तकदीर कहां बनती है? कौन किससे चाहकर दूर होता है? हर कोई अपनी मजबूरी से मजबूर होता है. कागज पे तस्वीर कहां बनती है? ख्वाबों में तकदीर कहां बनती है? कौन किससे चाहकर दूर होता है? हर कोई अपनी ट्रांसफर से मजबूर होता है. हमारे सिस्टम में हम तो इतना जानते हैं कि बीपीसीएल और आईआईएम का हर एक टीचर, बीपीसीएल और आईआईएम का हर एक टीचर मोती होता है और आपके जैसा हर एक डीलर कोहिनूर होता है. So always live with your qualities, my dear friends. Live with your qualities in life, and the life will start becoming very, very beautiful. Just keep on ignoring all the negatives or the things which has happened in the past. Live with your qualities, and the life will start living with you. That's my guarantee. Thank you very much. But you see the transition. We started with making snack and ended up into also something called automatic machine. मैंने कुछ भी एक प्रॉब्लम से शुरू किया. आपको रिवॉल्यूशन करना है. It saves time, bill trust about quantity, removes cash handling of the dealer, and point redemption in SBI card. With that, customer again and again comes to your retail. So reading point, with the help of that, you don't allow the customer to go any other fuel station. With the help of